Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of our book Indian Economic Development, and the title of this chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. As it is clear from its title that in this chapter we will try to understand different topics of our economy or the condition of our economy on the eve of independence, means at the time of our independence what was the condition of our economy. So let's start from some basic concept. What do you mean by economy? So we have discussed economy as a basic concept earlier. So economy refers to an organization of basic economic activities, and these economic activities are production, consumption, investment and distribution. So the organization of these economic activities is known as economy. So now we are trying to understand what was the condition of our economy at that time. The main motive to introduce this book is to familiarize with the condition and importance of our economy to our student, or basic features of our economy to our students, so that we can compare, understand our economy as what was our condition in 1947. So first we will start from economic condition. So the structure of India's present day economy is not just a current making. It has its roots steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries. So and we got independence in 1947, 15 अगस्त. So हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का राज रहा था और लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने हम पर राज किया. इस दौरान हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, हमारा संपूर्ण जो आर्थिक जीवन है वो पूर्णतया उनके द्वारा संचालित की गई नीतियों पर आधारित रहा और उनसे प्रभावित रहा. तो स्वाभाविक रूप से जब हम आज़ाद हुए तब हमारी आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था की स्थिति जो थी उन नीतियों का ही एक परिणाम थी. तो कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति होती है वो भविष्य में एक लंबे समय के दौरान लिए गए आर्थिक फैसले और व्यवस्थाओं का ही एक नतीजा होती है. सो द सोल पर्पज़ ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रीज़. ठीक है, फॉर देयर ऑन रैपिड एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. तो जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसी लागू की गई उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया जाए. और वो रॉ मटेरियल क्यों बनाया जाए? क्योंकि उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी ब्रिटिश मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को, उनके रैपिड ग्रोथ के लिए, उनको फिनिश गुड्स बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी वो इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, या उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनकर रह गए. So an understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिटिश पॉलिसी जो इस तरह की लागू की गई उसका क्या प्रभाव पड़ा, और उसी वजह से आज हम कई आर्थिक चुनौतियों से आज भी जूझ रहे हैं. क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर से पहले हम क्या थे? एक रिच और प्रॉस्परस कंट्री थे. सोने की चिड़िया के नाम से भारत जाना जाता था. इसका मतलब भारत एक समृद्ध और सुखी देश था. सो नेक्स्ट टॉपिक is low level of economic development under the colonial rule. So in this topic we will understand that what was the economic development, and it was very low during that period. So economic development यानी कि आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति, हमारी अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक मानक है उस पर आधारित होता है. जैसे हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी इनकम कितनी थी, नेशनल इनकम कितनी थी, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, और लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही थी. इस तरह की आर्थिक जो बातें हैं या आर्थिक तत्व है उसमें हम शामिल करते हैं. सो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट
people, yet the country's economic was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft industry in the field of cotton and silk, textile, metal and precious stone works etc. तो हम ये समझ रहे हैं कि आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों को हम इसमें शामिल करते हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, उनके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था। तो हम जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि संबंधी गतिविधियों से अपनी जीवन यापन करती है, उनसे आय प्राप्त होने पर अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अन्य उद्योगों जैसे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छे से जानी जाती थी। कॉटन और सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रेशियस स्टोन, इनकी हमारे जो प्रोडक्ट थे इनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। इसी वजह से हम इनका क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल की, तो उस समय मुस्लिम नामक का एक जो है कॉटन टेक्सटाइल का एक टाइप था जो बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और ये ढाका के आसपास के इलाके में पाया जाता था। और वर्तमान में ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। डेकाई मुस्लिम हैड गेंड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्विसाइड टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो डेकाई मुस्लिम जो है वो पूरे विश्व में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और विशेषता के लिए फेमस हो गए थे। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिम वॉज कोल्ड मलमल। तो ये जो ढाका की मलमल है, हमने सभी सुना होगा, कभी सुना होगा या आपके पेरेंट्स ने सुना होगा। तो ढाका की मलमल बहुत विश्वविख्यात थी, वो इसी का ही एक रूप थी। तो फॉरेन ट्रैवलर्स आल्सो यूज्ड टू रेफर एज इट मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वाज वॉर्न बाय और फिट बाय द रॉयल्टी। तो ढाका की मलमल इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी थी कि इसका उपयोग शाही परिवार के लोग पहनने के लिए किया करते थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रायर टू ब्रिटिश रूल हमारे उत्पादों की जो विश्व ख्याति थी वो कितनी थी और उसकी क्या डिमांड थी और क्या इम्पोर्टेंस था। सो लेट्स मूव। द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री दैन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश जो हमारे इंडिया में आए उनका उद्देश्य क्या था। वो कोई हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए नहीं आए, हमारे विकास के लिए नहीं आए। वो आए सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए आए और हमारे रिसोर्सेज, हमारी धन संपदा का उपयोग करके कैसे वे अपने खुद के देश जो ब्रिटेन है उसका भला कर पाए, उसका विकास कर पाए। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जो उनकी अपनी कंट्री जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए काम करती थी, उसके फेवर में थी। और इंडिया और इंडियंस के लिए वो क्या थी, अगेंस्ट थी। सच पॉलिसीज ब्रोट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसी पॉलिसी से हमारी अर्थव्यवस्था में क्या आया, फंडामेंटल चेंज आया, आधारभूत परिवर्तन आया। और ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ऐसा आधारभूत परिवर्तन आया कि हमारी इकोनॉमी जो पहले एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थी, हैंडीक्राफ्ट, जेम, स्टोन, ये जो टेक्सटाइल है, स्टोन है, ये सब हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से या कहें नेगेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हम क्या बन गए, हम चेंज हो गए। फंडामेंटल चेंज क्या आया, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम पहले एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थे, अब हम हो गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये सब हुआ बिकॉज ऑफ एडवर्स और नेगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बाय कॉलोनियल और ब्रिटिश गवर्नमेंट। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। ठीक है। तो साथ ही उन्होंने हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय उसको मेज़र करने के लिए भी कोई सिंसियर एफर्ट नहीं किया। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम अर्थव्यवस्था की प्रगति और उसकी समृद्धि दोनों का अनुमान लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र की आय को सूचित करती है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। ठीक है कि एक एवरेज इंडियन, एक एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा है वो हमें आइडिया लगेगा पर कैपिटा इनकम से। तो इस तरह का भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि उस समय जो कुछ विद्वान थे उन्होंने इसका एफर्ट किया, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिकबाई,
Finlay Siraj, V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. So it was Rao whose estimate during the colonial period was considered very significant. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meagre 0.5% growth in per capita output per year. तो कहने का मतलब ये कि V.K.R.V. राव का जो एस्टिमेशन था नेशनल इनकम का वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया उस समय, और कंट्री की जो ग्रोथ थी, रियल आउटपुट था, वो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो था वो कितना था, लेस देन 2%, मतलब 2% से भी कम हमारी जीडीपी थी। जीडीपी जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ accounting year is known as GDP growth rate, and it was less than 2%. So we can understand what was the condition, or how there were backwardness in our economy. So I hope now you are able to understand the economic development or low level of economic development our economy during that period. So thank you for today. That's all for today, and we will continue in next video.